Subject Business Studies, Chapter 1, Nature and Significance of Management. Now, the next topic is Functions of Management. The study of the function of management is an important topic in the theory of management. Management is the art of getting things done through and with people for the accomplishment of predetermined objectives. For attaining these objectives, a manager has to perform a series of functions like planning, organizing, staffing, direction, and controlling. First point is planning. Planning is the process of thinking before doing. Planning is always the first function. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Planning involves deciding beforehand. First point, what is to be done in the future? Second, how is it to be done? Third, where is it to be done? Fourth, when is it to be done? Fifth, by whom is it to be done? Thus, planning involves choosing the right course of action out of various alternatives. Second point, organizing. The process of organizing is very essential for accomplishing the objectives of the organization set by administration and planned by management. Organization has two branches, material organizing and human organizing. Yet the human part is more important. Physical resources are limited, work is therefore divided. Third heading is staffing. Staffing is the selection of employees who have training and skill to meet the demands of each position. It aims at right man for the right job. It is the third step of a function of a manager. It includes recruiting, selecting, appointing the employees and assigning them duties. Fourth point is directing. After the plans are made, the organization structure is established and people are hired. It is the time to move ahead with the project. For a successful venture, leadership is essential. Directing refers giving directions or instructions to the employees by motivating them, supervising the activities of employees, communicating with them. Manager act as a leader and a guide them to right direction. First function is supervision. Supervision means overseeing the subordinate at work. It refers to the direct and immediate observation and watching of subordinates performing their tasks. Second function of directing is communication. Communication is the important part of an organization. Communication involves a systematic and continuing process of telling, listening, and understanding. Communication is a two-way process. Orders and instructions from top level to lower level, suggestions and complaints from lower level upwards. Third function of directing is leadership. Leadership is the art of influencing the behavior of people in a particular direction. The last function of directing is motivation. Motivation is a term derived from the word motive. Management job is to identify and activate employees, motivates towards task performance. The last function of management is controlling. Controlling functions refer all follow-up action that keep the actual performance on the path of plan. The last function performed by the managers in which they try to compare the actual performance with the planned performance. Now, Hindi explanation. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट की थ्योरी में. मैनेजमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है. जब आप दूसरे व्यक्तियों की सहायता से अपने जो गोल्स हैं उसको अटेन करते हैं, उसे पाते हैं. अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए मैनेजर को एक सीरीज़ ऑफ फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है. उस सीरीज़ में पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्शन और लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने आज एक छोटी सी स्टोरी बनाई है. और जो पांचों फंक्शंस मैंने आपको बोले थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शंस मैंने उस कहानी में पुटअप कर दिए हैं. देखिए, एक गांव हुआ करता था, उसमें दो दोस्त रहा करते थे. एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था दिलीप. दोनों अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छुट्टियों में शहर घूमने जाते हैं, एक मेट्रो सिटी में घूमने जाते हैं. वहाँ दोनों घूमते हैं, उनको अच्छा लगता है और अलग अलग जगहों को देखते हैं. तभी जो राजू रहता है उसके मन में खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने का एक विचार आता है.
और वो वही आइडिया अपने दोस्तों को भी सुनाता है, दिलीप को, कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। पर दिलीप उसके आइडियाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि दिलीप जो था वो स्टडी ओरिएंटेड था, वो पढ़ाई करके और एक अच्छी जॉब करना चाहता था किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। दोनों दोस्त वापस गांव आ जाते हैं। राजू अपना विचार अपने पापा को बताता है। तब राजू के पिताजी उसे एक योजना बनाने को कहते हैं। राजू दिन रात मेहनत करके और एक प्लानिंग जो रहती है वो अपने पापा के आगे रखता है। पापा बहुत ही खुश हो जाते हैं। राजू ने जो योजना बनाई थी वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की थी। यहाँ मैं आप सभी को रोकना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि प्लानिंग क्या होती है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में विचार करना, इसे प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। और प्लानिंग में 5 क्वेश्चन भी होते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, भविष्य में हमें क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन है कैसे, भविष्य में हमें कोई भी काम कैसे करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कहाँ, वो कार्य कहाँ होगा। चौथा क्वेश्चन है कब, हमारा कार्य कब होगा, कब शुरू होगा और कब अंत होगा। ये भी हमें प्लानिंग में ही डिसाइड करना पड़ता है। और फिफ्थ को लास्ट जो क्वेश्चन है प्लानिंग का, वो ये है कि किसके द्वारा जो भी हमारा कार्य करेगा, किन व्यक्तियों के द्वारा उसका संपादन किया जाएगा। ये चीज़ें हमें प्लानिंग में ही डिसाइड करनी पड़ती है। राजू ने सही ढंग से प्लानिंग करी थी। उसके पिताजी ने उसके प्लान को देखा और जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे उसके बारे में राजू को और बताया और उसकी प्लानिंग की सराहना की उनने। फिर राजू ने यह डिसाइड करा कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटा। अब ये जो स्टेप है, जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटते हैं, ये स्टेप कहलाती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में 2 ब्रांचेस होती है। पहली है मटीरियल ऑर्गेनाइजिंग और दूसरी है ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग। ह्यूमन ऑर्गेनाइजिंग जो रहती है वो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसमें हर इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बांट दिया जाता है। रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट हुआ, ज़रूरी मटेरियल लाया गया और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली गई। अब जैसा आप सभी को पता ही होगा कि बिना किसी स्टाफ या बिना किसी कर्मचारी के कोई सा भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से राजू के रेस्टोरेंट का काम भी रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि अभी तक राजू ने जो स्टाफ है वो हायर नहीं किया था। तो अब बिना स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। तो राजू को भी स्टाफ अपॉइंट करना था। इस प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम हर वैकेंट पोस्ट को भरने की कोशिश करते हैं। यह 3rd स्टेप होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफिकेशंस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सिलेक्शन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आ जाता है आई टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, इंटरव्यू जैसी प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। फिर प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है। काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है। राजू ने भी अपने रेस्टोरेंट के लिए शेफ़, मैनेजर, सुपरवाइज़र, क्लीनिंग स्टाफ, सर्विंग स्टाफ जैसे लोगों को अपॉइंट किया और हर व्यक्ति को उसकी पोस्ट के हिसाब से काम दे दिया। तो इस प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहेंगे। हम सभी फिर से रिकॉल करेंगे। पहले हमने प्लानिंग की थी और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया था, पीपल हायर करे थे, वो प्रोसेस को हमने स्टाफिंग कहा था। और अब हम हमारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए एक अच्छी लीडरशिप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। राजू ने भी अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ जो थे उन्हें अपॉइंट कर लिया था और उसका अगला काम था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में 4 पार्ट होते हैं। पहला है सुपरविजन, दूसरा कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ लीडरशिप एंड लास्ट वन इज़ मोटिवेशन। सुपरविजन का मतलब था जब आपके सबऑर्डिनेट काम करते हैं तो उन्हें देखना, वो जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरह से उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वॉचिंग रखना ही सुपरविजन होता है। सेकेंड स्टेप थी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। सभी को मैंने बताया था कि एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है। जब 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत होती है तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कम्युनिकेशन 2-वे प्रोसेस होती है। फर्स्ट वे में ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इशू होते हैं टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, और नेक्स्ट प्रोसेस में सजेशंस और कंप्लेंट्स जो रहती है वो लोअर लेवल से अपर लेवल तक आती है। थर्ड पार्ट था लीडरशिप। लीडरशिप में लीडर जो रहता है वो सभी अपने वर्कर्स को लीड करता है और जो वर्कर रहते हैं वो लीडर को फॉलो करते हैं। और हम आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। लास्ट पार्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन डिराइव हुआ है टर्म मोटिव से, और मोटिवेशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना,
काम करने के प्रति। मोटिवेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरह से व्यक्तियों को मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने के प्रति प्रेरित करना। मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, और एक टाइप होता है मॉनिटरी मोटिवेशन एंड नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। हम मोटिवेशन को आगे आने वाले टॉपिक में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल बस इतना ही। और हमारा लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के करीब लेकर आते हैं। इस एक्टिविटी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। क्योंकि राजू एक मेहनती लड़का था, वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को बार बार चेक करता रहता था। उसने काफ़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ काम किया था, और इसी तरह उसने सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके और अपने रेस्टोरेंट को अच्छी तरह चलाने में सफल रहा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के लिए। होप आप सब लोग अब मुझे मैसेज करके रिप्लाई करेंगे कि आप लोगों को ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए या नहीं आए, या जिससे भी नहीं आए तो वो मुझे मैसेज करके और मुझे जो डाउट्स है वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।